good morning to all gathered here and also to all of us watching us online. I gladly take this opportunity to welcome you all to this Eucharistic celebration. Last 9 days, we have been preparing ourselves spiritually, reflecting upon the life of our patroness, our Blessed Mother, and participating in the Holy Eucharist. Finally, the long-awaited day has come, and all of us have gathered in the presence of the Lord this morning to celebrate our feast. On this auspicious day, we have Reverend Father Peter Emmanuel, the Rector of Pratiksha, the Major Seminary of Archdiocese of Delhi amongst us. Let's welcome him with a huge round of applause. I also extend a cordial welcome to all of you present here and to those who are watching us online. May this annual celebration of our church feast help us to experience the love and mercy of God in our lives and also bring unity, joy, and peace in our parish community and families. Let us prayerfully and devotedly participate in this Holy Eucharist and receive the numerous blessings and graces through the intercession of our Blessed Mother, Our Lady of Graces. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all, and with your spirit. My dear people of God, today in the Gospel we reflect Jesus is being asked what is the greatest commandment. And Jesus says, love God with all your heart, mind and soul, and love your neighbor as you love yourself. We have been during this pandemic, COVID-19. This commandment, when we reflect, has been disturbing many of us. God, who is so merciful, so loving, how can He allow this? And therefore we find many people have gone through the crisis of faith, questioning God. How can I love God with all my heart, mind and soul? And even today, when we see our neighbors whom we are supposed to love as we love ourselves, we see with a strange eye. We are frightened, we are afraid. Yet this commandment of Jesus challenges us to hold on to our faith that is in Christ, that is in God. Whatever the crisis, whatever the problem, but He is there to journey along with us. As we participate in this Holy Mass and celebrate the feast of Our Lady of Graces, let us participate ourselves devotedly in this Holy Mass, surrender ourselves to the Lord, and ask pardon for those moments when we have gone through this crisis of faith, doubted in God, in His existence, doubted in many, many ways. Let us surrender ourselves and ask pardon for those moments so that we may all worthily participate in this Holy Mass. Acknowledging all our sinfulness, let's say together, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have really sinned in my thoughts and in my words, and in what I have done, and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Lord have mercy.
Let us pray. Almighty ever-living God, increase our faith, hope, and charity, and make us love what you command, so that we may merit what you promise. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. First reading. A reading from the book of Exodus, chapter 22, verses 21 to 27. Thus says the Lord, you shall not wrong a stranger or oppress him, for you were strangers in the land of Egypt. You shall not afflict any widow or orphan. If you do afflict them, and they cry out to me, I will surely hear their cry, and my wrath will burn, and I will kill you with the sword, and your wives shall become widows, and your children fatherless. If you lend money to any of my people with you who is poor, you shall not be to him as a creditor, and you shall not exact interest from him. If you ever take your neighbor's garment in pledge, you shall restore it to him before the sun goes down. For that is his only covering. It is his mantle for his body. In what else shall he sleep? And if he cries to me, I will hear, for I am compassionate. The word of the Lord. Thanks be to God. दूसरा पाठ थेसलोनियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 5 से 10। आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए आपके बीच हमारा आचरण कैसा रहा। आप लोगों ने हमारा तथा प्रभु का अनुसरण किया और घोर कष्टों का सामना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आनंदपूर्वक सुसमाचार स्वीकार किया।
इस प्रकार आप मकेदुनिया तथा अखेया के सभी विश्वासियों के लिए आदर्श बन गए। आप लोगों के यहाँ से प्रभु का सुसमाचार न केवल मकेदुनिया तथा अखेया में फैल गया, बल्कि ईश्वर में आपसे विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है, लोग स्वयं बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देवमूर्तियाँ छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बन जाएं और उसके पुत्र यीशु की प्रतीक्षा करें, जिसे ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। यही यीशु स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कृपया जय घोष के लिए खड़े हो जाएं। साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा उसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित हैं। प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज हम सब के लिए बड़े आनंद और खुशी का दिन है, क्योंकि हम अक्टूबर के महीने में, जो कि माँ मरियम को समर्पित है, उनके आदर और सम्मान में आज हम इस गिरजाघर का पर्व मना रहे हैं। आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस, कृपाओं की माता। हालांकि आज रविवार है और आज के विशेष दिन पर
सुसमाचार पर मनन चिंतन करना चाहिए। पर पर्व के दिन मैं आज आपके साथ माँ मरियम पर मनन चिंतन करना चाहता हूँ कि आखिर हम क्यों माँ मरियम को कृपाओं की माता कहते हैं। वाई डू वी कॉल हर आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 पद संख्या 26 से 27 में कि ईश्वर ने आदम और हेवा को अपने प्रतिरूप बनाया, परंतु उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके कारण पाप की उत्पत्ति हुई। और यिर्मयाह के ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 29 में कि ईश्वर की मानव जाति के लिए एक योजना है, और कह सकते हैं हम सब के लिए एक योजना है। और संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम मनन करते हैं। वचन कहता है कि ईश्वर ने मानव जाति को बहुत प्यार किया। एंड वी रीड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द चर्च, स्पेशली लूमन जेंसियम, a beautiful document on the church which speaks about the mystery, the hierarchy, the laity, and at the end speaks about the Our Lady. And this document बताया गया है, फिर read number 10 onwards, कि ईश्वर व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि एक सामूहिक रूप से सबको बचाना चाहता है। नॉट एज इंडिविजुअल्स बट एज कम्युनिटी। कहने का अर्थ है कि पूरी मानव जाति को ईश्वर बचाना चाहता है। जब पाप की उत्पत्ति हुई, इसलिए ईश्वर ने अपने मुक्ति विधान के अनुसार माँ मरियम को चुना। इसलिए हम लूमन जेंसियम में, जो कि लास्ट चैप्टर इज डेडिकेटेड टू आवर लेडी, उसमें क्लियरली बताया गया है कि माँ मरियम का क्या अहमियत है। What is significant of Mary in the church? Beautiful, it is a document to reflect on. इसलिए सन अगस्टीन कहते हैं कि प्रभु अपनी माँ को, अर्थात यीशु अपनी माँ को सृष्टि के आरंभ से ही जानते थे, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपनी माँ की सृष्टि की। ईश्वर के रूप में उन्होंने अपनी माँ की सृष्टि की, इसलिए वे जानते थे कि वे उनकी माँ कौन है और उनके प्रतिरूप वो बनाए जाने वाले थे। She was a human like one of us and Jesus came as human। इसलिए सन अगस्टीन बोलते हैं ईश्वर ने खुद, प्रभु यीशु ने खुद माँ मरियम की सृष्टि की, जिसके प्रतिरूप वो बनाए जाने वाले थे, इसलिए ईश्वर ने उन्हें चुना। इसलिए हम सन लूकस के सुसमाचार में सुनते हैं अध्याय 1 पद संख्या 28 में गैब्रियल दूत माँ मरियम को कहता है, संबोधित करते हुए, प्रणाम रानी, कृपाओं की माता, ईश्वर आपके साथ है। दैट्स वाई मदर मेरी इज कॉल्ड आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस, कृपाओं की माता। जिस प्रकार सन अगस्टीन बताते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ से ही उन्हें चुन लिया, उनके ऊपर वे विशेष आशीष और कृपा थी। इसलिए कहा जाता है कि जब माँ मरियम ने प्रभु को कहा, मैं ईश्वर की कृपा पात्री हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हुए, उसी समय से माँ मरियम ईश्वर की मुक्ति, ईश्वर के प्रेम, ईश्वर की करुणा का माध्यम बनी। इसलिए माँ मरियम को कृपाओं की माता कहा जाता है। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, ये बात सत्य है कि बच्चों का अस्तित्व माता पिता से होता है। बच्चों का अस्तित्व माता पिता से ही होता है, परंतु माँ मरियम के जीवन में हम ये कह सकते हैं कि माँ मरियम का अस्तित्व प्रभु यीशु के लिए। यदि प्रभु यीशु का जन्म नहीं होता तो माँ मरियम का कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए मैंने कहा ये सत्य है कि बच्चों का अस्तित्व माँ बाप से होता है, परंतु माँ मरियम का अस्तित्व केवल प्रभु यीशु के लिए। इसलिए हम मनन करते हैं, जब आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, माँ मरियम ने ठीक उसके विपरीत ईश्वर की आज्ञा को माना, ये कहते हुए कि मैं प्रभु की दासी हूँ और आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। इन्हीं शब्दों से
माता कलीसिया बताती है जब हम लूमेन जेंसी में पढ़ते हैं, इन्हीं शब्दों से मुक्ति का द्वार खुल गया। इसलिए हमें ईश्वर की करुणा दया मिल गई। इसलिए नबी ईसायास कहते हैं कि एक कुंवारी जन देगी, पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। इसलिए प्रभु यीशु को संत मत्ती के सुसमाचार में कहते हैं अपने शिष्यों से, हम सब से, कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38 में हम मनन करते हैं कि बताया गया है प्रभु यीशु के नाम का अर्थ मुक्तिदाता। इसलिए माँ मरियम कृपाओं की माता बनती है, क्योंकि उनके एक हाँ कहने से ही हमें मुक्ति मिली है। हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 11 में भी मनन करते हैं किस प्रकार स्वर्गदूतों ने चरवाहों को कहा कि आज मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, जाओ बैतलहम में जाओ और उनके दर्शन करो। इसलिए हम देखते हैं जब माँ मरियम से चरवाहे मिले, उन्होंने सब चीज़ों को अपने जीवन में, अपने हृदय में संजोहित रखा। उसी सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 42 में हम मनन करते हैं जब एलिजाबेथ और माँ मरियम का वार्तालाप होता है। यदि हम बाइबल पढ़े हैं, ध्यान से पढ़ें, तो केवल 2 नारियों के बारे में कहा गया है कि आप धन्य हैं। मैं नहीं पूछने वाला कौन 2 नारियां हैं। एस्तर के ग्रंथ में अगर आप पढ़ें, अंत में हम देखते हैं किस प्रकार एस्तर के ग्रंथ में एस्तर ने जाकर इजरायली जनता को बचाया, राजा का सर काटकर। जब वे सर काटकर अपने साथ लाई, लोगों को दिखाया, तो सारी नारियों ने कहा आप नारियों में धन्य हैं। परंतु हम माँ मरियम के केस में कुछ अलग देखते हैं। जब माँ मरियम की भेंट एलिजाबेथ से हुई तो उन्होंने कहा कि आप नारियों में धन्य हैं, साथ ही साथ धन्य है आपका गर्भ का फल, क्योंकि उसके द्वारा हमें मुक्ति मिली है। और उसी सुसमाचार में पद संख्या अध्याय 1 पद संख्या 45 में एलिजाबेथ कहती है, धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया जो ईश्वर ने बोला आपसे कहा वह पूरा हो जाए। वह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माँ मरियम से जो कहा गया उन्होंने विश्वास किया। इसलिए माँ मरियम केवल धन्य नहीं, वह विश्वासी है, वह किस कृपा की पात्र है हम सब के लिए, जिनके द्वारा मुक्ति का आरंभ हुआ है। इसलिए संत लिगोरिस, अल्फोंस लिगोरिस कहते हैं कि माँ मरियम की आत्मा सबसे सुंदर आत्मा है। वे भी सन अगस्टिन के समान कहते हैं कि क्योंकि ईश्वर ने उनकी आत्मा को बनाया है। और वे कहते हैं कि माँ मरियम जन्म से ही एक महान संत थी। हम जानते हैं कि जब किसी संत को घोषित किया जाता है, चमत्कारों की ज़रूरत होती है, एक कैनोनिकल प्रोसेस है, परंतु सन लिगोरी कहते हैं कि वह तो एक संत, महान एक संत पैदा हुई, क्योंकि माँ मरियम ने प्रभु को जन्म दिया और हम सबको मुक्ति मिली। इसलिए माँ मरियम को कृपाओं की माता कहा जाता है। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हमसे काफ़ी प्रोटेस्टेंट लोग सवाल करते हैं, क्योंकि आप लोग माँ मरियम की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वाई डू वेनरेट एंड सो ऑन। बहुत सारे सवाल हैं। यदि हम बाइबल पर ही मनन करें, हम देखते हैं कि ईश्वर ने उन्हें सृष्टि के आरंभ से चुना है। शी इज नॉट जस्ट एन ऑब्जेक्ट चोजन एंड थ्रोन, नहीं, शी इज नॉट जस्ट एन ऑब्जेक्ट, किसे यूज किया, माध्यम केवल यूज किया और नहीं फेंक दिया। नो नो नो, बिल्कुल नहीं। कोई एक ऐसा माध्यम नहीं जिनको चुना और फेंक दिया। दैट इज द थिंकिंग। इसलिए सन पौलुस हमसे अपने पत्रों में कहते हैं, संत तिमोथी भी कहते हैं, आपको अलग अलग तरीके से कलीसिया के बारे में बकाया जाएगा, मन घड़त कर से दूसरी शिक्षाएं दी जाएंगी। पर जैसे हमने आपके साथ में मनन कर रहा हूँ, हम देखते हैं वचन में ही लिखा है कि इस प्रकार ईश्वर ने माँ मरियम को सृष्टि के आरंभ से ही चुना है। एलिजाबेथ ही खुद बोलती हैं कि आप धन्य हैं, नारियों में धन्य हैं, आपको चुना गया है विशेषकर।
हम काना के विवाह में मनन करते हैं अध्याय 2 में पद संख्या 1 से। माँ मरियम जानती थी कि वह ईश्वर नहीं है, वे अपने आप से खुद कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु से मध्यस्थता मांगी, प्रार्थना की कि आप इस परिवार के लिए कुछ कीजिए। वो ईश्वर नहीं है, इसलिए जो गलत धारणाएं हैं हमें उन्हें ठीक सही करना है। इसलिए हम देखते हैं कि माँ मरियम केवल हमारे लिए मध्यस्थता करती हैं। हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं, अध्याय 1 में पढ़ते हैं, पद संख्या 12 से 14 में हम मनन करते हैं कि प्रभु के मृत्यु के बाद, प्रभु के पुनरुत्थान से पहले, उनके स्वर्गारोहण से पहले शिष्य बहुत भयभीत थे। उनको सहारा किसने दिया, उनको हिम्मत किसने दी? अगर हम वचन करते हैं, माँ मरियम उनके साथ प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि माँ मरियम जानती थी वो ईश्वर नहीं है, वे केवल मध्यस्थता करती है, वह सांत्वना देती है, वो धैर्य देती है। इसलिए क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, जब हम इस पैंडमिक से गुजर रहे हैं, माँ मरियम से हम क्या सीख सकते हैं इस समय? व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ मेरी? माँ मरियम के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहला कि उनके जीवन का उद्देश्य था ईश्वर की इच्छा को पूरा करना। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि आज का सुसमाचार हमें बताता है कि ईश्वर को तन मन हृदय से प्रेम करना, और ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या मैं माँ मरियम के जीवन के द्वारा ऐसी परिस्थिति, ऐसे समय में ईश्वर को तन मन हृदय से प्यार कर सकता हूँ जिस प्रकार माँ मरियम ने किया? दूसरा, प्रार्थना करना, विश्वास करना माँ मरियम के समान। ऐसी घड़ी है, बहुत सारी परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, क्या हम अपनी प्रार्थना, अपने विश्वास में अटल हैं? हमें माँ मरियम के जीवन से सीखना है। तीसरा, ईश्वर के वचन को अपने हृदय में संजोहित रखना, विश्वास करना। हम देखते हैं कि जिस प्रकार चरवाहों ने माँ मरियम को प्रभु के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में बताया, माँ मरियम ने अपने हृदय में संजोहित रखा। सिमेन की प्रोफेसी के समय भी माँ मरियम ने प्रभु के वचनों को अपने जीवन में संजोहित रखा और विश्वास किया। क्या ऐसी घड़ी में भी हम, वह स्तोत्र ग्रंथ भी बताता है कि जब हम अंधेरी घाटी से गुजरते हैं, ईश्वर हमारे साथ है। ऐसी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, क्या हम माँ मरियम से सीख सकते हैं ऐसी परिस्थिति में भी कि हम ईश वचन के द्वारा प्रभु पर विश्वास करें? चौथा, सेवा। अभी हमें डर लग रहा है कि हम किस प्रकार एक दूसरे को मदद करें। कल मैं मदर टेरेसा सिस्टर्स के साथ मिस्सा के लिए गया था, तो मास के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आंध्रा में इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स द कलेक्टर आस्क्ड एमसी सिस्टर्स, कैन यू स्पेयर योर फ्यू सिस्टर्स फॉर फीडिंग द कोविड पेशेंट? मेडिसिन तो डॉक्टर लोग दे रहे हैं, नर्सेस दे रहे हैं, कैन यू स्पेयर सम ऑफ योर सिस्टर्स टू फीड? हम जानते हैं ऐसी स्थिति में भी खाना खिलाना बड़ा मुश्किल है। And sisters were telling that the provincial allowed 36 sisters. कलेक्टर ने उनके लिए एक प्रोविज़न बनाया एक साथ रहने के लिए ये, और डेली 4 सिस्टर्स जाके लोगों को, जो बहुत बड़ा सेंटर है वहाँ पर सेवा करी, उनको केवल खाना खिला रही हैं। 3 दिन खिलाया, 3 दिन के बाद दे आर गोइंग इनटू क्वारंटाइन। सो सेवा करना एक बहुत ऐसी परिस्थिति में भी हमें सोचना है, क्या हम माँ मरियम से सीख सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं किस प्रकार माँ मरियम ने एलिजाबेथ की सेवा की, और अंत में क्या हम माँ मरियम के समान ऐसी परिस्थिति में हर दुख सुख में ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि नहीं? क्योंकि माँ मरियम कहती है, मेरी आत्मा ईश्वर के गुणगान करती है। आइए जब हम इस विश्व बलिदान में भाग लेते हैं, माँ मरियम के जीवन पर मनन चिंतन करते हैं, किस प्रकार वे हम सब के लिए कृपाओं की माता है। हम भी माँ मरियम के समान ईश्वर को हमारे सुख दुख में विश्वास करें, उनके मार्ग पर चलें और तन मन हृदय से ईश्वर को हमारे जीवन में धन्यवाद दें। Let us stand up and profess our faith together. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth.
I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. On the third day He rose again from the ascended into heaven, and seated at the right hand of God. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and life everlasting. Amen. Loving God with the whole of one's being is undoubtedly the greatest commandment. But Jesus adds a second commandment to this, which is equally demanding. It is to love one's neighbor as oneself. That we may fulfill these obligations to the utmost of our abilities, let us say, saying, Lord, help us to love you and our neighbor. Lord, help us to love you and our neighbor. हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संघी कलीसिया की अगुवाओं के रूप में अपने जीवन को ऐसे जिए कि सभी ख्रीस्त विश्वासी उनका अनुकरण कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। Since God is the giver and protector of life, let us pray that all people may acknowledge God's fatherhood and love Him with undivided attention. For this we pray, Lord, help us to love you and our neighbors. हम अपने पड़ोसी को प्यार करें और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहें, ताकि हम यीशु की दूसरी आज्ञा का पालन कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। That there may be no person in communities who has no one to love, whose children are far away, whose relatives keep away, that when the dear ones fail to love, the community may assume that role. For this we pray, Lord, help us to love you and our neighbor. इस यूकरिस्ती समुदाय में एकत्र सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर को सारे हृदय, सारे मन और सारी आत्मा से प्यार करें तथा अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम मौन रूप से उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कोरोना से संक्रमित हैं। हम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल टीम के सदस्यों के लिए प्रार्थना करें जो लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो हताश है, परेशान है, निराश है, जिनके लिए खाने पीने के लिए बहुत तंगी है। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें इस परिस्थिति में। आज के इस विशेष दिन पर हम अपनी पल्ली के लिए प्रार्थना करें। हमारे फादर दीपक के लिए, फादर ब्रिटो के लिए, सिस्टर्स के लिए, पल्ली के सभी परिवारों के लिए, सभी सदस्यों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो यहाँ पर आज नहीं आ पाए। पल्ली के सब नवयुवक युवतियों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि एक परिवार के रूप में ईश्वर का अनुग्रह, कृपा हम सब पर बना रहे। God our Father, we thank you for the gift of your Son Jesus, who while interacting with the Lord has spelled out the greatest commandment. It involves a duty to love you and our neighbor. Give us the grace that we may carry out this duty with utmost attention. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. और गाए उसका नाम सदा।
my brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be accepted to God Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and good of all His holy church. Look, we pray, O Lord, on the offerings we make to your majesty, that whatever is done by us in your service may be directed above all to your glory. Through Christ our Lord. Amen. प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है, और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था, उसे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वरदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। ये उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर,
कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम युग क्रिस्त का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु सच्चा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम इससे मेरी स्मृति में किया करो। यह हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रद भोग और प्रताप में पुनरुत्थान का स्वग्रहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोतते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि हम उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, धन्य संत यूसुफ, उनके पवित्र वर, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी ईश्वर के आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल जोसेफ थॉमस कुटो, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर, दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराई से बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति वादन करें। प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रत्न करने वाला हूँ। मेरे लिए विचार दंड का कारण न बने, बल्कि तन मन हृदय से सुरक्षित रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सभी जो इस प्रीति भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
church notices. On 2nd of November, All Souls Day, we'll have 2 Mass, morning 7 o'clock and evening 7 o'clock. 2 नवंबर सभी मृत आत्माओं के त्यौहार के दिन 2 मिसा होगा, 7 बजे सुबह और 7 बजे शाम को. And this year, on 2nd of November, All Souls Day, there will not be Mass either in Paharganj nor in Buradi and here in Dwaraka. इन तीनों जगह में मिस्सा नहीं होगा. They are suggesting that you visit beforehand. 1-2 दिन पहले आप कब्रिस्तान में जाकर के अपने प्रियजनों को अपना श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं ताकि 2 नवंबर को अधिक भीड़ भाड़ न हो. सो प्लीज़ रिमेंबर, इफ़ यू आर गोइंग ऑन 2nd of November to pay homage to your near and dear one, you can be stopped there. आपको घुसने नहीं दिया जाएगा अगर अधिक भीड़ भाड़ होगा तो, इसलिए 1-2 दिन पहले जा कर के आप लोग अपने रिश्तेदारों से आप लोग श्रद्धांजलि दे सकते हैं. एंड टुडे इवनिंग ऑनवर्ड्स, आज शाम से लेकर के आने वाला शनिवार तक जितने भी दिल्ली डायसिस, दिल्ली धर्म प्रांत के फादर लोग हैं वे अपना 1 सप्ताह का एनुअल रिट्रीट करेंगे. सो कृपया उनको अपने प्रार्थनाओं में याद करिएगा. एंड टुडे वी सेलिब्रेट आवर एनुअल पैरिश फीस्ट. आज हम लोग अपना चर्च का पैरिश फीस्ट मनाते हैं. आई थैंक ऑल आवर पैरिश काउंसिल मेंबर्स फॉर देयर हेल्प एंड सपोर्ट. सो प्लीज़ गिव देम ए बिग हैंड. एंड हमारे पैरिश के सभी वीमेन काउंसिल मेंबर लोगों ने हम सबों की मदद और सहायता की है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा. और स्पेशली हमारे जो कोयर मेंबर्स हैं, सिर्फ आज ही नहीं लेकिन पूरा नौबीना प्रार्थना के दौरान उन्होंने अपना मधुर गानों के द्वारा हम सबों को प्रार्थना करने में मदद की है. तो कृपा करके एक बार इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइएगा. और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने अपनी मदद के द्वारा आज के दिन को सफल बनाया है, उन सारे स्पॉन्सर्स के लिए भी एक बार आप लोग ज़ोरदार तालियां बजाइएगा. एंड दिस altar decoration is done by JMJ sisters, so please give them a big hand. And St. Anne's sisters, they have looked after all the need for our liturgy throughout this novena prayer, so please give them a big hand. और जितने भी हमारे सीनियर मेंबर्स हैं और जो 10 साल से कम के बच्चे हैं जो हमारे बीच आकर के ये नवीना प्रार्थना में और आज का जो मिस्सा बलिदान में भाग नहीं ले पाए, लेकिन वो लोग यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा इस मिस्सा बलिदान में सम्मिलित हो रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइएगा. और विशेष रूप से कुछ यूथ लोग और फादर ब्रिटो ने मिलकर के ये जो यूट्यूब और फेसबुक को लाइव हमारे सीनियर मेंबर्स और बच्चों तक पहुंचाने के लिए सफल बनाया है, तो उनके लिए भी आप एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा. एंड वी थैंक और मेन सेलिब्रेंट फादर पीटर इमानुएल, हमारे प्रतीक्षा जो कि डायसन मेजर सेमिनरी है वहाँ का रेक्टर है, और आज के दिन हमारा पल्ली त्यौहार के दिन आकर के हम सबों के लिए विशेष रूप से मिस्सा बलिदान को चढ़ाया है, तो हम उनको एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद दें. और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज के इस दिन को सफल बनाने के लिए हम सबों की मदद की है, जिनका नाम बहुत लंबा हो जाएगा, तो उनको मैं शॉर्टकट में एक बार आप लोगों से जोरदार तालियां बजाइएगा उन सबों के लिए. और अंत में मैं ताली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज का जो दिन है वो सफल हुआ,
तो आप लोगों की वजह से। आप लोग ताली मत बजाइएगा, लेकिन एक दूसरे की तरफ मुड़ करके एक बार उनकी तरफ बाउट योर हेड एंड कॉन्ग्रेचुलेट ईच अदर। एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा सिर हिला करके बोलिए थैंक यू वेरी मच एंड वेरी वेरी हैप्पी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू। सबों को आज का ये जो त्योहार का बहुत बहुत मुबारक हो। सबों को आज का दिन का शुभकामनाएं। और ये दिन सफल होने के लिए एक आदमी की बहुत ज़रूरी है। कौन है? फादर दीपक, हमारे पल्ली पुरोहित। सो जब भी हम जाते हैं फादर के पास, generously he gives anything we ask, whatever help, and for everything he supports. So let us give him a huge round of applause and thank him. Thank you, dear Father. अंतिम आशीष से पहले भी मैं बड़े फादर दीपक को, फादर ब्रिटो और आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के इस पर्व के दिन मुझे ये अवसर मिला कि आपके बीच आकर ये मिस्सा बलिदान अर्पित करूं और प्रार्थना करूं। तो मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं। Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering to God. Let us pray. May your sacraments, O Lord, we pray, perfect in us that what lies within them, that what we now celebrate in sign may one day possess in truth. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. With your spirit. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God. Remember, O most gracious Virgin Mary, that no was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession, who was left unaided. Inspired by this confidence, I fly unto you, O Virgin of Virgins, my Mother. To thee I come, before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in your mercy hear and answer me. Amen. Mary, Queen of Peace and Channel of all the graces, Pray for us.